Welcome everyone. Myself Rakesh Pandey. Today in our second class in the chapter life process, we'll continue with the chapter transportation. In my last class, we have discussed about respiration. So what happened in respiration? We have seen the respiratory system, how we get oxygen, how we get energy from that, so that all process we have seen. Okay, so like this, today we'll start how oxygen or food or waste are transported from one place to another place. There should be a well defined system which enable us to reach water, minerals, oxygen, hormones, food nutrients to each and every place. Okay, one thing more, that this is the most important system in our life process. Why is it so? Because this is the only process which is connected to all other process. For example, in digestion also we have seen that blood is involved to carry food. In respiration also we have seen that oxygen is combined with blood, then only it reaches to the cell. And in excretion also we have seen the same process happen. Okay, so this is the system which is connected to all other system, that's why it's very important. Fine, so one by one we'll see. First of all, in introduction part we'll see what the transport do. Okay, so the transport is a live process in which substance absorbed, okay, and moves from one part to the another part. Fine, in small animals or lower animals there is transport system, but that is not so complex. But in large organisms, for example in our body or large plants, animals, we need food, oxygen, water, different materials. It should be go from one place to another place. That's why this is important. Okay, so to carry these food, oxygen, whatever, we need a special system. Fine, so we need a special system to carry these substances. So which system I am talking about? This is the circulatory system in human body or in large animals. But in plants also there is a system, but that is not so complex. Okay, that system can run through the special tissues only. Understood? So one by one we'll see how this system is important to us. Fine, now the first is transport in plants. Now how plant is transported, how how materials are transported in plants. So first of all, we have already studied about plant tissue and animal tissue. Plant tissue and animal tissue. Now this plant tissue and animal tissue, whatever we have seen, this is plant tissue totally different from animal tissue. Why is it so? We have seen there, because they have cell wall, they do not locomote from one place to another place. Okay, but in plants the transport system is also different from animal. How is it? First of all, we have to understand what are the materials which going to be transported. वो कौन कौन से मटेरियल हैं जो ट्रांसपोर्ट होंगे प्लांट्स में, वो सिर्फ दो तरीके से डिफाइन हो सकते हैं. फर्स्ट इज द वाटर एंड मिनरल्स, एंड द सेकंड इज फूड एंड हॉर्मोन्स. अंडरस्टूड? ट्रांसपोर्ट ऑफ
फूड एंड मिनरल्स और दूसरा है फूड एंड हॉर्मोन्स. अंडरस्टूड? So this is how we have to see. Other part, plants have two transport system. Plants have two transport system. Which one? First, to carry water and minerals, we have xylem. To carry food and materials, we have phloem. Xylem and phloem. And we have already studied in class 9 about xylem tissue. It is a very important tissue for plants, that how this xylem helps in the transportation of water and minerals. So what are the cells are involved, what are the cells are present inside the xylem which helps them to transport? So that we'll see in this chapter, but we'll not discuss in detail about the xylem cells, okay, because that we have studied already. Only thing we have to study in class 10 about the physiological process, that how water and minerals are transported, what are the physiology involved in that, that we have to study. Okay, so after that, let's start with transport of water and minerals. Okay, so the first thing we have to understand, from where plant gets water. Plant वाटर कहाँ से मिलता है उसे? क्या उसे बारिश से मिलता है? डायरेक्टली बारिश का पानी उस पर चला जाता है? नहीं. क्या हम जो पानी पत्तों पे डालते हैं उससे वो पानी लेता है? नहीं. क्या वो सॉइल से लेता है? यस. प्लांट्स टेक वाटर, दे गेट्स वाटर ओनली थ्रू सॉइल्स, नथिंग एल्स. सो इनके पास एक सिस्टम है जो वो लोग उसी को फॉलो करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए. इनके पास एक वेल डिफाइंड system. Fine. So what is that system? So first of all, we need to understand this, that water and minerals are absorbed from the soil by roots. Because soil में सबसे closest plant का part कौन सा है? वो root है. And then it transported to various parts of the plant like stem, leaves and flowers. Simple. Now, then how it is transported? Then water and minerals are transported by xylem tissue. This is important, that how they are transported by xylem tissue. Now xylem tissue have four components, three non-living and one living. You have to remember this. Tracheids, okay, so they have a non-tapering and like structure. This is tracheid, okay, and they have pits in them. Fine. Xylem vessels they have. This is the structure they have, xylem vessels. This is the structure they have, xylem vessels. Parenchyma cells, this is the living cell. And lastly they have sclerenchyma. All cells have different roles. For example, they have sclerenchyma for mechanical strength, to make the plant more stiff. Okay, parenchyma, this is important for the conduction, to make the tissue living, because food is stored there. As a vessel, they make a pipe like structure, and trachea, they help to absorb water. So each and every cell have their own function, and that function is used for the transportation of water and minerals. Okay, the whole process is totally unidirectional. एक बार प्लांट जमीन से पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, वो ऊपर से नीचे कभी नहीं आएगा. इट विल गो थ्रू ओनली वन डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस. ओके, एक बार जो भी प्रेशर क्रिएट होगा वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस. ओके, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड. इसमें जो प्रेशर क्रिएट होता है, इसमें किसी भी एनर्जी का किसी भी तरह का खर्च नहीं है. जस्ट पॉइंट टू बी रिमेंबर, नो एटीपी इज रिक्वायर्ड फॉर दिस process. And this process of absorbing water from upper side, this is called ascent of sap.
What is ascent of sap? Ascent means rise and sap means water. Actually, it is rise of water. So this process is called rise of water, or we can say ascent of sap. Okay, so by this we can know easily about this. Okay, understood? So by this we can easily know what is this process. Now, after that, how this water and mineral is transported? What is the mechanism? The question comes from here. So there are basically two mechanisms. Just remember this. First is the root pressure. The first mechanism is root pressure, and second is transpirational pull. So है क्या root pressure? So just for definition, root pressure definition है क्या है कि when the concentration of ions आयंस हम प्लांट्स के रूट हेयर्स के अंदर में भी है और सॉइल में भी है, ठीक है ना. व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल एंड प्रेजेंट इन द रूट हैव सम डिफरेंस, मतलब कि सॉइल के अंदर में जितना भी आयन है मिनरल्स और रूट के अंदर में जितने भी आयन्स हैं, अगर इनके बीच में किसी भी तरह का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का डिफरेंस होता है, अगर कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, तो टू रिमूव दिस डिफरेंस अ प्रेशर इज क्रिएटेड विच इज कॉल्ड रूट प्रेशर. ओके, अंडरस्टूड. सॉयल और रूट के अंदर में जो भी आयन का कॉन्सेंट्रेशन है, उस कॉन्सेंट्रेशन में अगर कोई डिफरेंस है तो इस डिफरेंस को दूर करने के लिए जो प्रेशर क्रिएट होता है इसे हम लोग रूट प्रेशर बोलते हैं. ओके, रूट प्रेशर दिन में भी काम कर सकता है, रूट प्रेशर रात में भी काम कर सकता है. जनरली रूट प्रेशर रात में काम करता है, ठीक है. क्यों, उसका रीजन भी पढ़ेंगे हम लोग. यू नो व्हाट इज रूट प्रेशर. एंड रूट प्रेशर को हम लोग आसानी से डीपीडी भी बोल सकते हैं. डीपीडी क्या है? डीपीडी इट इज डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट. डेफिशिट मतलब कमी होती है, तो एक प्रेशर क्रिएट होगा उसी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के डिफरेंस को मिटाने के लिए, इसी को बोलते हैं हम लोग रूट प्रेशर. दिस रूट प्रेशर वर्क्स ऑन डे टाइम एज वेल एज इन नाइट टाइम, मोस्टली इन नाइट टाइम. ठीक, दिस इज योर रूट प्रेशर. तो यहाँ से जो भी प्रेशर क्रिएट होगा इन दोनों के बीच में, ये इस एपिडर्मिस के थ्रू होते हुए, ये रूट कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है, ये रहा हमारा जाइलम का वेसल, यहाँ से लेकर हमारे आसानी से लीव्स तक पहुंचेगा. ये प्रोसेस पूरे के पूरे प्लांट्स में होगा. सेकेंड इज ट्रांसपिरेशनल पुल. तो यू नो व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, हमने पढ़ा है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. तो जब भी कोई ट्रांसपिरेशन होता है, राइट, तो ये जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो रहा है इसमें पानी का लॉस होता है. तो जस्ट याद कीजिए कि जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो वी यूज स्ट्रॉ यूज करते हैं, और स्ट्रॉ को हम लोग खींचते हैं. ऊपर से खींचना, इसी को सक्शन कहा जाता है. सो जब भी ये ऊपर से खींचा जाएगा तो अंदर का नीचे का चीज भी ऊपर आता है. वैसे ही जितना ज़्यादा पानी यहाँ बाहर निकल रहा है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, उतना ज़्यादा प्रेशर यहाँ रूट पे पड़ता है, ताकि वो उतना ही अमाउंट के पानी को खींचे और लीव्स को दे. यानी हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ से पानी खींचा जाएगा थ्रू कैपिलरी एक्शन. इसको हम लोग कैपिलरी एक्शन भी कह सकते हैं. अंडरस्टूड. तो ट्रांसपिरेशन कब हो सकता है? सिर्फ दिन में होगा, ठीक है. तो ट्रांसपिरेशनल पुल दिन भर होता है, यानी प्लांट्स जो पानी चाहिए प्लांट्स को, दे टेक वाटर ड्यूरिंग डे टाइम, और उस दिन में ही वो ये सारा काम करते हैं. तो रूट प्रेशर की एक्चुअली जरूरत ही नहीं पड़ती है. अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा हो दिन में तो वो रूट प्रेशर का काम करेंगे, लेकिन अगर ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो ट्रांसपिरेशन पुल होगा, सक्शन पुल होगा, और ये आसानी से ऐसा कर सकते हैं. ठीक है. तो बाय दिस टू मेथड्स plant actually carries water and minerals from roots to leaves. Understood?
So this is the mechanism. This you have to remember. Whenever you have to explain this process, you have to draw this diagram. Okay, जब भी ऐसा कुछ होगा तो आपको ये डायग्राम बनाना है. Understood? Now, what is transpiration? So transpiration is a process. Transpiration क्या है? एक ऐसा process है that is a loss of water from the pores of leaves. ओके और ये ट्रांसपिरेशन है, इसके तीन इंपॉर्टेंस है जरूरी. पहला, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, भाई ट्रांसपोर्ट कर रहा है बाय ट्रांसपिरेशनल पुल. सेकेंड थिंग इज द टेम्परेचर रेगुलेशन, जितना ज़्यादा पानी अंदर में आएगा उतना प्लांट भी थोड़ा ठंडा महसूस करेगा, सॉरी वाटर बाहर निकलेगा तो ठीक है, और ज़्यादा पानी अंदर आएगा. एंड थर्ड इज वेस्ट रिमूवल, अंदर में जितने भी वेस्ट हैं वो भी यहीं से ही आसानी से इवोपरेट होते हैं. तो इस प्रोसेस में ट्रांसपिरेशन होता है. अंडरस्टूड? नाउ वन मोर थिंग वी हैव टू सी हियर अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड हॉर्मोन्स. क्या ट्रांसपोर्ट होता है फूड एंड हॉर्मोन्स में? ओके, सो इन फूड एंड हॉर्मोन्स, you know where the food is formed. फूड कहाँ बनता है? इन द लीव्स. ओके, एंड हॉर्मोन्स कहाँ बन रहे हैं? इन द टिप ऑफ द प्लांट. ओके, नाउ दिस फूड ट्रांसपोर्ट बेसिकली इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन. इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग? ट्रांसलोकेशन कहेंगे इस प्रोसेस को. और ये मूवमेंट जो होगा इसके अंदर में, तो इनके पास स्पेशल सेल्स हैं. जैसे they consist of sieve tubes, companion cells, parenchyma and phloem fibers. तो ये फ्लोएम के अंदर में ये सेल्स हैं जिससे ये फंक्शन होगा. फूड एंड हॉर्मोन्स जनरली आर बाई डायरेक्शनल. मूवमेंट जो है बाई डायरेक्शनल होगा. बाई डायरेक्शनल का मतलब अगर लीव्स के ऊपर खाना पहुंचाना है तो लीव्स को से नीचे भी खाना पहुंचेगा. तो ये बाई डायरेक्शनल का प्रोसेस हुआ, ठीक है ना. तो इसके लिए प्लांट को अपना एटीपी खर्च करना पड़ता है. दे हैव टू यूटिलाइज देयर एटीपी. उनको अपना एटीपी किसी तरह से खर्च करना ही पड़ेगा इस प्रोसेस के अंदर में. अंडरस्टूड? नाउ तो ये मैकेनिज्म होता कैसे? तो सबसे पहले तो शुगर जो भी प्लांट बना रहा है, जो भी प्लांट शुगर फूड बना रहा है वो सीव ट्यूब्स में लोड होगा, और लोड होने के लिए दे नीड एटीपी. अब जैसे ही सीव ट्यूब्स के अंदर वाटर जाता है तो एक प्रोसेस स्टार्ट होगा ऑस्मोसिस, जिसकी वजह से जो भी इनके अंदर में प्रेशर क्रिएट होगा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के थ्रू, और तब जा कर के वो अलाउ करेगा फ्लोएम को, ताकि वो प्लांट के एक एक कोने तक पहुंचाए. 2 से 3 स्टेप है. फूड को लोड करने के लिए सीव ट्यूब्स में एटीपी खर्च होगा. एटीपी के खर्च होने के बाद जब प्रेशर हाई होता है फूड का, तो वहाँ पे ऑस्मोसिस के प्रोसेस से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फूड पहुँचेगा. और इसी की वजह से ही प्लांट अलाउ करता है उन चीज़ों को, चाहे फूड की बात हो चाहे हार्मोन्स की बात हो. ओके, सो लाइक दिस फूड एंड हार्मोन्स इज ट्रांसपोर्टेड. अंडरस्टूड? तो प्लांट के अंदर में प्रोसेस इसी ढंग से रहता है. अंडरस्टूड? ओके, सो मेन क्वेश्चन कम्स इन दिस टॉपिक. इन दिस टॉपिक इज दिस व्हाट? कैरिंग वाटर एंड मिनरल्स. ओके, कैसे वाटर में मैकेनिज्म पे क्वेश्चन मेनली यहाँ पे आता है कि कौन सा मैकेनिज्म है. ट्रांसपिरेशन के इम्पोर्टेंस पे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन. So that you have to understand. So what else is there in this part? Okay, 3 मार्क्स से 5 मार्क्स तक में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं. Understood? Now, transportation in human. How transportation takes place? हाँ, ह्यूमन के अंदर में कैसे होता है? तो जैसे ह्यूमन का हमने पढ़ा है कि ह्यूमन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी है, राइट? हमारे पास डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. क्यों हैं? क्योंकि हम लोगों को अलग अलग चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने की ज़रूरत है. फूड भी हम अलग अलग तरह का खाते हैं. हार्मोन्स भी हमारे अंदर में अलग अलग जगह पर हैं. ऐसा नहीं है कि एक ही जगह हार्मोन बन रहा है वहीं से लेके आना, नहीं.
we have different location for different glands so that they secrete hormone and hormone is used in all over the body. इसीलिए तो हमारे पास ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है, वेल स्पेसिफिक, वेल कोऑर्डिनेटेड, so that each and every substance should be carried or transported within time. Okay, so we have circulatory fluid. First of all we have circulatory fluid जो मूव होगा, दो हैं वो ब्लड है और लिम्फ है. सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर, वी हैव सर्कुलेटरी स्ट्रक्चर जो ब्लड वेसल है. पंपिंग ऑर्गन जो कि हमारा हार्ट है. तो ये तीन हमारी चीजें हैं ट्रांसपोर्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर में. ओके, अंडरस्टूड. नाउ एक वन बाय वन विल सी. नाउ फर्स्ट इज द ब्लड. क्या काम है ब्लड का? ओके, सो ब्लड, वी नो दैट ब्लड इज रेड इन कलर, लिक्विड इज सर्कुलेट्स इन द बॉडी. पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने का काम है इसका. इट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. वाई इट इज फ्लूइड? डिपेंड्स ऑफ प्लाज्मा. हम लोग देखेंगे रेड कलर का है हीमोग्लोबिन की वजह से. ओके, कहाँ बनता है ब्लड? हमारे रेड बोन मैरो में, हमारे लॉन्ग बोन्स में, जैसे फीमर हो गया, जैसे ह्यूमरस हो गया, स्टर्नम हो गया, इन सब जगह पे ब्लड बनने के प्रोसेस को क्या कहा जाता है? हिमैटोपोइसिस. हिमैटोपोइसिस. and the normal pH of blood is 7.4. Understood? Okay, so one by one we'll see. First just ध्यान देना है हम लोग के कंपोनेंट ऑफ ब्लड पे कि ब्लड में कौन कौन सी चीजें हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ ब्लड को दो पार्ट्स में बांट दें, अगर प्लाज्मा और दूसरा बांट दें फॉर्म्ड एलिमेंट्स में. ठीक है, जो प्लाज्मा है हमारा वो 65% है, सॉरी 55% है, और जो हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो 45% है पूरे ब्लड का. इस 55% में 90% तो सिर्फ पानी ही है. दैट्स वाई दे आस्क यू द क्वेश्चन व्हाई ब्लड इज फ्लूइड इन नेचर, ड्यू टू द मैक्सिमम कंटेंट ऑफ वाटर. ओके, 90% इन 55% ऑफ प्लाज्मा. इसके अलावा इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं इनके पास, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रोजन, सबका अलग अलग काम 9 में पढ़ा है. हार्मोन्स लेके जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेके जाते हैं, वो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स भी लेके जाते हैं जैसे यूरिया, एमिनो एसिड जो वेस्ट के फॉर्म में, क्रेटिनिन, बिलिरुबिन, कुछ गैसेस भी लेके जाते हैं, आयंस लेके जाते हैं. ये सब प्लाज्मा का काम है. जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं उनमें प्लेटलेट्स जिनको हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, आरबीसी जो कि हमारा रेड ब्लड सेल है, और ल्यूकोसाइट. ठीक है, इसका अपना डे फिक्स्ड है कि 120 दिन ही जिंदा रहेगा. यानी डेली हमारे बॉडी का 1% ब्लड खत्म होता है और 1% ब्लड बनता है. इसी प्रोसेस के थ्रू होता है ये. ल्यूकोसाइट का प्रोसेस है. ल्यूकोसाइट में मतलब जो हमारे डिजीज हमें बचाएगा. उसमें भी कई तरह के हैं. ये जो 3 हैं ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं, और लिम्फोसाइट और मोनोसाइट जो होते हैं वो ए ग्रैनुलोसाइट्स में आते हैं. तो इन सब का काम है अपना बेसिकली डिफेंस का काम होता है. तो ये पूरे कंपोनेंट्स हैं हमारे ब्लड के. अंडरस्टूड? ब्लड का फंक्शन क्या है? ब्लड का अपना अपना फंक्शन है अलग अलग तरीके से. जैसे ट्रांसपोर्टेशन में क्या काम है भाई? रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन लेके जाएगा, न्यूट्रिएंट लेके जाएगा, जीआईटी मीन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, उससे लेके जाएगा. ये हार्मोन्स लेके जा रहे हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट लेके जा रहे हैं. क्या रेगुलेशन में क्या काम है इनका भाई? तो रेगुलेट करने का मतलब हमारे पीएच को मेंटेन करेगा, क्योंकि ब्लड खुद जो है वो बहुत अच्छा बफर है, मतलब एसिड बेस को मेंटेन करता है. खुद ही वो न्यूट्रल के पास है. टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, सॉल्ट को, वाटर कंटेंट ऑफ द सेल मेंटेन कर रहा है ये. प्रोटेक्शन का काम अलग से ही इसका हो गया. प्रोटेक्शन में फैगोसाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, हेमोस्टेसिस परफॉर्म्स, मींस बॉडी को एक तरह जैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना. ये सब काम हमारे ब्लड का है. तो इन दिस पार्ट वी हैव सीन जस्ट ब्लड. सेकेंड पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें
कंडक्टिंग स्ट्रक्चर, मतलब जो ले करके जाएगा ब्लड वेसल्स वो कैसे हैं, और हार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक चीज और आएगा, लिम्फेटिक सिस्टम, वो भी हम लोग इसको पढ़ेंगे। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ योर ब्लड परफॉर्म्स। सो हमने आज स्टार्ट किया सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया, जिसमें हमने प्लांट्स का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखा, और दूसरा ये है कि हमने ब्लड को स्टार्ट किया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे ब्लड वेसल्स कैसे काम करता है। so this is very important and interesting also. You come to know that how your heart works properly, and how your heart actually control other organs also. अगर हार्ट में कुछ दिक्कत होगी तो किडनी पर असर पड़ेगा, ऐसे करके लीवर पे और अदर ऑर्गन सब जुड़े हुए हैं इसी सबसे। ओके, सो दिस पार्ट वी हैव completed. So join me in my next session, next class, in which we'll start human heart, कैसे वो function कर रहा है, ठीक है? So before that, just go through your book and read line by line. Then you get some more information. Ask in doubt class, where you'll get your answers. Okay, so till then, goodbye.